students listening is pretty more than it's pretty more than the faculty members and academicians. So the basic motto behind why I chose this topic is, let me share. In the last session, I was given an opportunity to study, to give the lectures to BCom and BA students. And let me tell you, it was devastating for me when I got to know that none of the students, because environmental studies, it's mandatory now for all the streams to clear up at least a single exam. None of the students had a knowledge about what is global warming, what is ozone layer depletion, what is acid rain, what is climate change, what is global warming, nothing. So, I mean, that's really because our new generation, they are importantly, it's important for them to get to know exactly what environmental issues are being faced by globally a living population nowadays. The second thing which really enhances me to exactly take care of the environmental issues faced nowadays is I was reading one article in the newspaper. It's about 4 to 5, 6 months ago, I guess. So that was India among 20 most polluted cities in the world. India contributes the most. Guys, I'm serious about it. India contributes the most. More than 6 cities in India, they contribute the higher level of pollution, air pollution globally. Though the China was there, in China, Beijing was there, the most polluted one. In Pakistan, Islamabad, and in Bangladesh, some other cities were there too. But globally, the ratings were highest for India for being the most pollution contributing country in the world. It really strikes me to put more emphasis on environmental issues faced nowadays. I think many of the students I'll be interacting with mostly BSc and MSc grads and undergrad students. So I'll be talking about acid rain, and I'll be talking about ozone layer depletion. These are basic, very common ninth and 10th grade topics. But before that, I would like to say कि आजकल जो बहुत ज्यादा कॉमनली रिसर्चेज हो रही हैं, पहले तो कोविड 19 पे, वायरस पे, सार्स पे, मर्स पे, इन सब पे बहुत ज्यादा रिसर्चेज हुई. अब जो लेटेस्ट रिसर्चेज आ रही हैं वो आ रही हैं कि लॉकडाउन एंड इम्पैक्ट ऑन पोल्यूशन. तो जैसे जैसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, हम जैसे जैसे डेवलप्ड कंट्रीज की दौड़ में आगे होते जा रहे हैं, वी आर लिटरली हैरेसिंग आवर एनवायरमेंट. तो इसीलिए मेरा बेसिक टॉपिक जो आज का है, दैट इज साइंस एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. सो गाइस, बिफोर ऑल द स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू से कि आपने देखा ही होगा, क्योंकि मैं गंग नहर के पास रहती हूँ, गंग कैनाल्स के पास. तो किस तरीके से, जो अगर आप रिव्यू आर्टिकल्स, कुछ लोग जो रेगुलरली रिव्यू आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते होंगे, तो किस हिसाब से गंगा का पानी साफ होता जा रहा है. डोंट टेक इट वेरी साइंटिफिकली विद लॉट्स ऑफ वो भारी भरकम वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज के साथ. जस्ट मेक इट सिंपल कि गंगा का पानी अब इतना साफ क्यों है, जो पिछले कई सालों में, डिकेड्स में साफ नहीं हुआ. क्यों दिल्ली में जो अभी रिसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टेस्टिंग हुई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना प्योरिटी की तरफ क्यों आ रहा है, जो अब तक नहीं था. कहीं ना कहीं जो हमने इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतना अर्बनाइजेशन कर रखा था. आज आपने देखा है वर्क फ्रॉम होम, मोस्ट आईटी कंट्रीज वर्क फ्रॉम होम करा रही हैं कंपनीज, और उनका वर्क अच्छे से चल रहा है, पहले से बेटर चल रहा है. जो एम्प्लॉयज थे वो पहले से बेटर इनपुट दे रहे हैं. तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे पास ऑल्टरनेट हर चीज का है, until or unless we are ready to accept it. So, students, first of all, it's mostly about the students. Students, I'll be taking two topics, that is acid rain and ozone layer depletion. And instead of you, I'll be asking after every topic, I'll be asking 3 to 4 questions to you guys. And I would really appreciate if you guys are able to answer it. These going to be the basic ones. So, better be the active listeners. All right. So, let's start with ozone layer depletion. जब हम ओजोन लेयर डिप्लीशन इज समथिंग, किसी चीज का नुकसान होना, डिप्लीट होना, किसी चीज का हैरेसिंग होना इज योर डिप्लीशन. तो जब हम बेसिकली ओजोन की बात करते हैं तो दो चीजें हैं, ऑक्सीजन है और ओजोन है. ऑक्सीजन को हम O2 से डिनोट करते हैं एंड ओजोन इज O3. तो बेसिकली इसमें क्या डिफरेंस है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में है, एटम्स है, और ओजोन में ऑक्सीजन के 3 एटम्स है, तो O2 एंड O3 हो गया.
स्टार्टिंग हम बेस से लेके चलते हैं, एटमोस्फियर क्या होता है। अगर आप सिंपल साइंटिफिक बुकिश लैंग्वेज पे जाते हैं, इट्स अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अस व्हिच लेट अस लिव बेटर एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, बट बेसिकली एक एयर ऑफ इट्स अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स अस, दैट लेट अस लिव प्रॉपर्ली एंड ऑल। तो बेसिकली जो है आपका एटमोस्फियर है, लिथोस्फियर एंड हाइड्रोस्फियर है। लिथो इज योर लैंड, हाइड्रोस्फियर इज योर वाटर बॉडीज। एटमोस्फियर इज सब कैटेगराइज्ड। क्या क्या कैटेगरीज हैं इसकी? ट्रोपोस्फियर है, अर्थ के सरफेस से जब आप 12 किलोमीटर अब तक जाते हैं, दैट इज योर ट्रोपोस्फियर। उसके 12 से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर तक जब जाते हैं, दैट इज योर स्ट्रेटोस्फियर, एंड देन इट कम्स योर मीजोस्फियर, देन योर थर्मोस्फियर, एंड देन योर एक्सोस्फियर, इट गोज ऑन। तो बेसिकली ओजोन लेयर कहाँ पर है? बेसिकली ओजोन लेयर आपके स्ट्रेटोस्फियर में है, ठीक है। ओजोन लेयर जब हमारे अर्थ सरफेस पे होती है, ट्रोपोस्फियर के अराउंड रहती है, तो ये एक पॉल्यूटेंट का काम करती है। ये मोस्टली स्मॉग फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा इसका रोल होता है, तो ये पॉल्यूटेंट का काम करती है। लेकिन जैसे ही ये स्ट्रेटोस्फियर में पहुंच जाती है, इट्स अ बून। ये हमारे लिए एक वरदान का काम करती है। सबसे पहले ओजोन और ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये एग्जैक्टली हमारे लिए करते क्या है? अगर मैं सिंपल आपको एक कोरिलेशन देती हूँ कि स्ट्रेटोस्फियर है, आपका अर्थ सरफेस है, और बीच में क्या है? बीच में आपकी ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर का काम कैसे होता है स्टूडेंट, से मैं आपको इजीली समझाती हूँ कि आप लोग घर में चाय बनाते हैं, चाय पीते होंगे, बनाते भी होंगे। आपके पैन जिसमें आप चाय बनाते हैं, उसमें आपकी दूध होता है, चीनी होती है, पत्ती होती है, ठीक है, शुगर होती है, उसका मिक्सचर होता है। जब आप उस बनी हुई चाय को कप में डाल रहे होते हैं, बीच में क्या होती है? बीच में आपकी सीव होती है, छलनी होती है, राइट। जब आप उसे डाल रहे होते हो तो क्या होता है? आपकी जो मेन इंग्रेडिएंट है, आपका जो मेन सब्सटेंस है, आपकी चाय, वो आपके कप में आ जाती है, द प्योरेस्ट फॉर्म। लेकिन इसके बीच में जो पत्ती होती है, जो इम्प्योर है, एंड यू वोंट बी टेकिंग इट, वो आपकी छलनी में रुक जाती है, चाय आपको मिल जाती है। छलनी ने किसका काम किया? आपको अनवांटेड सब्सटेंसेस ना देने का काम किया। तो इसको अब आप कोरिलेट करेंगे ओजोन लेयर से, ठीक है। आपका पैन जो है वो आपकी सन की, आप समझ लीजिए सन है। जो आपका पूरा मिक्सचर है चाय का, वो आपकी सन की अलग अलग किरणें हैं। आपका जो कप है वो आपकी अर्थ है, ठीक है। और जो आपका छलनी है वो आपकी ओजोन लेयर है। तो जब सूरज की किरणें आती हैं, तो जो खास किरणें आपके लिए, हमारे लिए, ग्लोबली लिविंग बींग्स के लिए, अर्थ के लिविंग बींग्स के लिए जरूरी है, वो सीधे कप में आ जाती है, मतलब वो सीधे हमारे अर्थ पे आ जाती है। लेकिन जो अनवांटेड किरणें हैं, जैसे आपके अल्ट्रावायलेट बीटा रेडिएशंस, वो इस छलनी में, छलनी क्या है? हमारी ओजोन लेयर, इस छलनी में आ जाती है। तो हमें बिल्कुल प्योर फॉर्म मिल रही है आपकी सन रेज की, विच आर रियली नीडेड बाय आवर बॉडी, ऑल द लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? अगर मैं उस आपकी चाय की छलनी में 5 से छेद कर दूं तो क्या होगा? आपकी पत्ती जो है वो डायरेक्टली आपके कप में आएगी। आप उस चाय को नहीं पी पाएंगे। दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गल्प इट, टू हैव इट, टू swallow इट। तो सेम इज द केस, आपकी सन की किरणें, आप जहां ये छेद होते जा रहे हैं, ये छेद क्यों हो रहे हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। जहां छेद हो रहे हैं, उसकी आपकी अल्ट्रा वायलेट बीटा रेडिएशन सीधे आपकी अर्थ में आ रही है। कप आपका अर्थ है, सीधे आपकी अर्थ में आ रही है, नुकसान पहुंचा रही है। जैसे आप कप नहीं पी, चाय नहीं पी पाएंगे पत्ती वाली, वैसे ये रेडिएशंस भी आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान देंगी। पर आपके साथ कप में ऑप्शन होता है, यू कैन थ्रो इट अवे एंड हैव अनदर वन। बट विद दिस ओजोन लेयर फुल प्रोसीजर, यू कांट इमिट इट। आपको वो रेज लेनी पड़ेगी एनी हाउ, बट यू कैन टेक फ्यू प्रिकॉशंस। सो एग्जैक्टली, ये वी आर डन द एग्जाम्पल। सो एग्जैक्टली अब हम देखेंगे ये जो छेद की बात मैंने कही है, ये हो क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक सोर्सेज है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, आपके थर्मल पावर प्लांट्स यूज हो रहे हैं, आपके रॉकेट प्रोपल्शंस हैं, आपके न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो किए जा रहे हैं, जो साइंटिफिकली सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, ये सब आगे स्ट्रेटोस्फीयर से होते हुए ये सब ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। बट इन सम में जो मेजर टर्म हम यूज करेंगे, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एज अ रेफ्रिजरेटर्स में, एज अ रेफ्रिजरेशन के लिए रेफ्रिजरेटर्स में और एसीज में यूज होता है। अब एसी और रेफ्रिजरेटर, वी कांट लिव विदाउट दैट, राइट। सो अल्टीमेटली ह्यूमंस आर द वन जो कि नुकसान पहुंचा रहे हैं अर्थ को और अल्टीमेटली ओजोन लेयर को। तो फाइनली होता क्या है कि ये जितने भी सी एफ सी में कुछ बहुत अच्छे एप्लीकेशन है, जैसे कि ये नॉन कोरोसिव है,
ये नॉन इन्फ्लेमेटरी है, इसकी लाइफ स्पैन बहुत हाई है, ये 40 से 150 साल तक इसका लाइफ स्पैन है, ये जिंदा इस टाइम ये अलाइव रहता है। इस वजह से जितने भी होम अप्लायंसेस की कंपनीज वगैरह हैं, दे टारगेटेड, ये मोस्टली इसे प्रेफर करती है। हालांकि अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से इसका ऑल्टरनेटली इसे यूज किया जा रहा है, बट स्टिल मैक्सिमम जगहों पे सीएफसीज ही यूज हो रहे हैं। तो सीएफसी एग्जैक्टली करता क्या है, जब आप एसी चलाते हैं, आप ब्लोअर चलाते हैं, या कई बार क्या होता है हमारे एसी और ब्लोअर जो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, वी आर डन, हम वी गेट द न्यू वन, तो क्या होता है ये सीएफसी को रिलीज करते हैं ट्रोपोस्फियर से आगे। जब ये स्ट्रेटोस्फियर में जाते हैं सीएफसी, तो सीएफसी जेड क्या है, CCl2F2, ये इसका फॉर्मूला है। तो क्या होता है इसमें, जब ये ऊपर CCl2F2 जब ये ओजोन के उसमें आता है, कांटेक्ट में आता है, ओजोन के O3 के कांटेक्ट में, तो ये Cl क्लोरीन जो है वो फ्री रेडिकल्स रिलीज कर देता है, और ये जो क्लोरीन होता है ये ओजोन लेयर को हार्म करता है, इसमें छेद करने का, इसे डिप्लीट करने का मोस्ट श्रेय इसको जाता है। तो सीएफसी जो है वो मोस्टली इस तरीके से ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। सो फाइनली अब हम बेसिकली देखें, सबसे पहले अगर हम यूनिट्स की बात करें, तो ओजोन लेयर को इसकी थिकनेस नापने का क्या तरीका है, इसकी यूनिट होती है डॉप्सन, और इसको नापने के जो कुछ खास प्रोसीजर्स होते हैं, एक तो होता है डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और एक आपका होता है टॉम्स, दैट इज टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये जो है आपकी निम्बस 7 सैटेलाइट के थ्रू वंस और ट्वाइस इन ईयर ये इसकी थिकनेस को मेजर किया जाता है। अभी कुछ लेटर स्टडीज में मैंने आई जस्ट रेड आउट कि अंटार्कटिका विच इज सिचुएटेड इन द साउथ पोल, वहां की ओजोन लेयर 50% से ज्यादा डिप्लीट हो चुकी है, 50% से ज्यादा डिप्लीट हो चुकी है, दैट इज सिचुएटेड इन द साउथ पोल। और 1996 की एक स्टडीज में आया था कि आर्कटिक जो है आपका नदर्न हेमिस्फीयर में, वहां पे ब्रिटेन की तरफ, तो वो भी बहुत ज्यादा डिप्लीट हो चुका है, मगर इसका परसेंटेज जो है वो आपके साउथ पोल के अंटार्कटिका में ज्यादा है, वहां पे डिप्लीशन ज्यादा हुआ है। तो अब कुछ अगर मैं बेसिकली बताऊं कि ये इफेक्ट क्या क्या डालता है, तो इफेक्ट की बात ये है कि अगर आपकी डायरेक्टली सन रेज आप पे आ रही हैं, तो आपने देखा हुआ है मेनी ऑफ द पीपल आज विदाउट यूवी प्रोटेक्टेड सनग्लासेस बाहर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि जो आपकी यूवी बीटा रेडिएशन होती है वो डायरेक्टली आपकी कॉर्निया पे अटैक करती है, आपके आंख के कॉर्निया पे, और उसकी लेंस को बहुत हद तक डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, जिससे आपका विजन काफी हद तक ब्लर हो जाता है। सेकेंड क्या होता है, ये आपके मेलेनिन पे डायरेक्टली अटैक करते हैं, और कुछ रिसर्चेस में ये भी आया है कि जितने भी लाइट स्किन पीपल होते हैं दे बिकम मोर प्रोन टू स्किन कैंसर, मेलानोमा, स्किन कैंसर के लिए बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी नॉर्मल स्किन इरिटेशंस और इस टाइप की जो भी डिजीजेस होती है, जो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस होती है, दे बिकम क्वाइट मोर कॉमन होते हैं। इसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको अल्ट्रावायलेट ग्लासेस पहनने चाहिए व्हेनेवर यू गो आउट, यू शुड वेयर सनस्क्रीन। उसका SPF कितना है दैट वेरीज, आई मीन यू कैन टॉक अ डर्मेटोलॉजिस्ट और समथिंग इफ यू आर वेरी पर्टिकुलर, और इफ यू हैव अ वेरी प्रोन स्किन लाइक यू हैव सनस्ट्रोक और प्रोन स्किन होती है आपकी, सो बेटर यू गो विद अ गुड SPF सनस्क्रीन। उसके अलावा जो है हम ये जो थर्मल एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अगर हम करते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं हम स्पेस पे, अगर हम इनका कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट ढूंढ सके टेक्नोलॉजिकली, अगर हम इसका ऑल्टरनेट ढूंढ सके। उसके अलावा अगर हम CFC को जितना हो सके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका हम ऑल्टरनेट HFC है, या हम कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढे। जैसे आपने कोविड-19 के अभी लॉकडाउन टाइम में देखा कि बहुत ज्यादा एसी चलाना अलाउड नहीं है, तो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम दिया था, या आप इतना एसी नहीं, या इस टेम्परेचर के बियॉन्ड नहीं जाएंगे, इस टेम्परेचर के अबव नहीं जाएंगे, तो देयर वर सो मेनी गाइडलाइंस। तो डियर, ऑल गाइडलाइंस रियली मैटर्स, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम और इन सब मामलों में आप हर की पैड़ी में जाके विसर्जन एंड ऑल नहीं करेंगे। इट वाज अ बून फॉर ऑल दीज थिंग्स, रिवर स्ट्रीम्स हो, या आपकी किस हिसाब से एनिमल्स हो रहे हैं, किस हिसाब से बायोडाइवर्सिटी एनरिच हुई है दोबारा से, दो द पर्टिकुलर टाइम वाज टू लेस, बट डाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा एनरिचमेंट हुई है। रिवर्स, वाटर स्ट्रीम्स, इवन योर सॉइल की फर्टिलिटी में आया है, बिकॉज वी एग्रीकल्चर भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुआ था आपके लॉकडाउन से। सो देयर वर सो मेनी थिंग्स।
सो इससे आई थिंक हम कर सकते हैं। तो फिलहाल तो यही प्रिकॉशंस है। मैं अपनी यंग जनरेशन, अपने स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करूंगी कि इनमें से वो कुछ एक दो चीजें भी अपनाएंगे तो काफी 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 हद तक हम इसको हेल्प आउट कर सकते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन में अपना कंट्रीब्यूशन ना करके। So I think it was easy for all of you to get it. So I am going to ask few questions to all the students, and I would those who know the answer, please unmute yourself and speak up. Okay, my first question is, what is the full form of CFC? Is there anyone who can answer? Chlorofluorocarbon. Right. Very good. Okay, the next question is, what is the unit of measuring the Measuring the thickness? thickness. I'm I'm not. What is the I'm what is the weight? What is the unit of measuring the thickness? मैम वॉइस क्लियर नहीं हुई। बेटा, ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करने की यूनिट क्या है? मैम डॉप्सन। ओके फाइन, डॉप्सन। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का लाइफ स्पैन क्या है? हाइड्रोक्लोरो। व्हाट इज द लाइफ स्पैन? वो कितने टाइम तक एक्टिवली अलाइव? मैम 50 से 140 ईयर्स तक। That is 40 years to 150. All right, that's good. Okay, what is the alternative nowadays for chlorofluorocarbon? HFC. What is the alternative for chlorofluorocarbon nowadays? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। I would really appreciate if other students answer too. All right. Okay. In which and pole Antarctica is situated? मैम साउथ पोल। All right. Fine. Thank you. Finally, you guys are fully, because I think I am not using that harsh kind of language ताकि students easily समझ सकें. So, is there any questions from regarding ozone layer depletion? Is there anyone want to ask any questions relating ozone layer depletion? Or do you? Hello? Are we ready to proceed with our next topic? Are we ready to proceed with our next topic? यस मैम। All right. Okay, dear students. So I think that was easy enough for you to understand exactly what the ozone layer depletion is. And I hope that in future, though we cannot erase the technologies from our lives, but to some extent we can minimize the usage, or we can do the usage appropriately. All right, students, so next topic, whatever I am going to take up is what is acid rain. सिंपल लैंग्वेज में समझना है, एसिड है और रेन है, इन दोनों वर्ड से आपका एसिड रेन बन रहा है। मतलब हम एक ऐसी बारिश की बात कर रहे हैं जो नेचर में एसिडिक है। ओके, विच ऑल टुगेदर मेक इट एसिड रेन। अच्छा, एसिड की जब भी हम बात करते हैं, यू नो कि जब भी हम H+ की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट OH-, वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस। जब हम pH की बात करते हैं तो 0 से 14 के बीच में हमारा स्केल होता है, बीच में, क्योंकि 14 का हाफ है 7 को हम न्यूट्रल कैटेगरी में रखते हैं। कोई भी चीज अब 0 से 7 के बीच में है, इट्स एसिडिक, और 7 से 14 के बीच में है, दैट्स अ बेस। तो अगर मैं आपका बुकिश लैंग्वेज में समझाऊं तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन which has many acids dissolved in it, which ultimately harms the environment, aquatic flora and fauna. And also I don't want to go with any kind of bookish kind of language or scientific terminologies. It's just a basic, we should know that. So जब हम acid rain की बात करते हैं तो एसिड रेन ही नहीं होती, एसिड फॉग भी होती है, एसिडिक मिस्ट भी होती है, एसिडिक स्मॉग भी होती है। सो इट्स नॉट लाइक कि एसिड रेन ही है। और आपने देखा है कि इस हिसाब से दिल्ली में स्मॉग और फॉग का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। और जब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक किया गया था, दैट वाज एट इट्स पीक। फाइन। तो नॉट ओनली रेन्स आर एसिडिक, देयर आर सो मच स्टफ्स व्हिच आर एसिडिक। अच्छा, जब भी हम एसिड रेन की बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग, एसिड रेन कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। और whenever we talk about
एसिड रेन, तो द फर्स्ट थिंग दैट रियली कम्स इनटू माय माइंड इज जो आपकी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होती हैं, दे आर द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ एसिड रेन। अच्छा ये कहा, अच्छा हम दो चीजें होती हैं, कोई भी चीज या तो नेचुरली अकरिंग होती है या एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन इंड्यूस होती है, लेकिन एसिड रेन के उसमें क्या है, इसमें दोनों चीजें इक्वली कंबाइंड है। इसमें नेचुरल डिजास्टर्स जो आपके होते हैं वो भी उतने ही कंट्रीब्यूट करते हैं जितना आपका एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन इंड्यूस एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती है। मतलब जब आपके वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जब आपके थर्मल एक्सपेंशन होते हैं, जब आपके बायोमास प्रोडक्शन होता है, जब आपकी थंडर एंड लाइटनिंग होती है, नेचुरल चीजें हो गई। जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, जब आपका इंडस्ट्रियल एमिशन कुछ भी निकलता है, जब आपके फॉसिल फ्यूल का कंबशन होता है, जब आपका डिकम्पोजिशन ऑफ एनी काइंड ऑफ स्टफ होता है, जब आपके न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं, जब आपके फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज होता है, ये सब नेचुरल और मैन मेड चीजें जब ऑल टुगेदर इकट्ठे होती हैं तो ये एसिड रेन का कारण बनती हैं। तो मैंने आपको बेसिक सोर्सेज बता दिए कि आपके एसिड रेन और इनके क्या कारण हैं। अच्छा, जब हम वोल्केनिक इरप्शन की बात करते हैं तो क्या होता है कि वोल्केनोस फटते हैं, तो आपको क्या लगता है जब वोल्केनोस फटते हैं तो एसिड रेन का क्या होना चाहिए? एसिड रेन बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? डेफिनेटली एसिड रेन बढ़ती है। एसिड रेन में जो एसिड का लेवल होता है दैट इंक्रीजेस, बट एट द सेम टाइम ग्लोबल वार्मिंग घट जाती है। क्यों घट जाती है? जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड, अगर आप SO2 को मान लेते हैं, जब ये डस्ट पार्टिकल्स के साथ अटैच होता है तो ये क्या फॉर्म करता है? दिस फॉर्म्स एरोसोल्स, एंड एरोसोल्स हैव गॉट द कैपेसिटी कि ये जितने भी हीटिंग सब्सटेंसेस OZD, मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस OZS होते हैं या इस टाइप की चीजें होती हैं, तो ये उनको रेपेल करने का काम करते हैं, उनको दे थ्रो देम बैक टू देयर इनिशियल स्टेट्स। तो ग्लोबल वार्मिंग एट द सेम टाइम घट जाती है, मगर एसिड रेन एट द सेम टाइम बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि SO2 डस्ट के साथ में एरोसॉल्स का प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, अब हम बेसिकली अगर हम इसके बात करते हैं कि इसके इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं एसिड रेन। सबसे पहले जब एसिड रेन होती है तो आप सबने सबसे अच्छा एग्जाम्पल, शायद आप लोग ने अगर आर्टिकल्स पढ़े हों, तो जो हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो हमारे ग्लोबल, जैसे आपने सेवेंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड देखा है ताजमहल, जो कि मार्बल से बना हुआ है। जब क्योंकि ये जो एसिड्स होते हैं दे आर कोरोसिव इन नेचर, तो ये इनकी शाइन को, इस टाइप की चीजों को अफेक्ट करती है। तो ताजमहल स्टडीज में आया कि इसे बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, बल्कि रिसेंट स्टडीज में तो एसिड रेन वगैरह से ये भी आया है कि सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ये डायरेक्टली सॉइल में आता है, एसिडिटी बढ़ा देता है, सॉइल की फर्टिलिटी पे बहुत कम करता है। जब सॉइल की फर्टिलिटी पे असर पड़ेगा तो आपके एग्रीकल्चरल क्रॉप्स पे फर्क पड़ेगा, या एग्रीकल्चर क्रॉप्स में भी वो चीजें एड ऑन होंगी, उनके नेचर में कहीं ना कहीं दैट एसिडिक बिहेवियर आ जाएगा। ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट से, अच्छा घर में क्या होता है, क्योंकि घर आपका सीमेंट वगैरह से बना होता है, तो कहीं ना कहीं आपके घरों की शाइनिंग पे और छोटी छोटी दरारें पड़ जाती हैं। एसिड रेन जहाँ पे मैक्सिमम ऑब्जर्व किया गया उन जगहों पे आपके फ्लोरा, एक्वाटिक फ्लोरा और फौना पे बहुत असर पड़ता है। जैसे अब आप एक्वाटिक की बात करें तो जब ये आता है, ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा एसिडिक वाटर होता है, ये जब नदी वगैरह में जाता है तो ये क्या करता है, ये बहुत ज्यादा, उसमें भी कुछ हैवी मेटल्स जो होते हैं, वहां से हैवी मेटल्स को लेता हुआ, अब फाइटोप्लैंक्टन सबको पता है सनलाइट वगैरह पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो वो उनमें जाएगा। O3 डायरेक्टली काफी ज्यादा मैचअप होके बहुत ज्यादा एसिडिटी आ गई उनमें, वो आगे वाटर को बहुत ज्यादा एसिडिक कर देगा। अब फाइटोप्लैंक्टॉन्स को जू प्लैंक्टॉन्स खाएंगे, जू प्लैंक्टॉन को स्मॉल फिशेस खाएंगी, स्मॉल फिशेस को बिग फिशेस खाएंगी, ओवरऑल फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। आपके जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ग्रोथ, जो बाहर लैंड पे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं इनकी ग्रोथ पे स्टंटेड होती है, ग्रोथ पे फर्क पड़ता है, लीफ में फर्क पड़ता है, उनके ग्राना स्टोमेटा क्लोरोफिल में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अदर्स सर विल यू प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग, यस। तो उन पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। फिर आपके स्किन प्रॉब्लम, आपने देखा है आजकल स्किन प्रॉब्लम, योर हेयर प्रॉब्लम, दे आर सो कॉमन, so you have to visit dermatologist, so common. So all these things somehow they are related to all these acid rain mostly. अच्छा, इसके इफेक्ट पढ़ लिया, अब इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं? सॉल्यूशंस में देखिए, सबसे पहले बोलोगे कि जो फॉसिल फ्यूल्स का कंबशन हो रहा है, अगर इसे हम कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकें, जैसे आपने देखा है पेट्रोलियम डीजल की जगह CNG
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज हो रहा है। हालांकि आई लिव इन रुड़की एंड वी जस्ट हैव अ सिंगल पेट्रोल पंप जहाँ पे ये सीएनजी अवेलेबल है, तो अभी तक इसकी बहुत ज्यादा नॉलेज लोगों को नहीं है। मुंबई और दिल्ली और कुछ मेट्रो सिटीज में फिर भी पीपल यूजिंग इट। दूसरा क्योंकि एसिड रेन का मोस्ट सबसे बड़ा सोर्स जो है ना वो आपका व्हीक्यूलर एमिशंस, जो व्हीकल से निकला हुआ एमिशन है, क्योंकि व्हीकल्स में फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम वगैरह का डायरेक्ट कंबशन होता है, तो वो डायरेक्टली आपके एयर में ऑक्साइड सल्फर नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स को पहुंचाते हैं। तो अगर हम फॉसिल फ्यूल के कंबशन का ऑल्टरनेटिव ढूंढें, अगर हम मोस्ट कंपनीज जैसे लॉकडाउन पीरियड में किया है, मोस्टली वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज अगर अवेलेबल कर सके, अगर हम बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एमिशंस जो हैं, एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस होती है। देखिए कंपनीज आप बंद नहीं करेंगे एयर पोल्यूशन एसिड रेन की वजह से, बट देयर आर फ्यू गाइडलाइंस होती हैं, कुछ इंडस्ट्रियल ऑडिट्स होती हैं जहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स आते हैं, दे व्यू इट कि आपकी चिमनी का साइज प्रॉपर है कि नहीं जो निकलती हैं। तो इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हो। अच्छा, दिल्ली ने एक क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था, ऑड एंड इवन का, तो काफी हद तक भी ये बहुत कारगर था कि कार पूलिंग करें आप, लेकिन बट पीपल दे हैव देयर ओन प्रायोरिटीज। सो इन चीजों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सो आई थिंक, अच्छा दूसरी बात, कई ऐसे लॉज गवर्नमेंट द्वारा भी लॉन्च होते हैं एयर पोल्यूशन का, और आपकी जो इंडस्ट्रीज वो ड्वेलिंग प्लेस से दूर होनी चाहिए। आपकी ऑडिट रिपोर्ट्स हर इंडस्ट्री के पास उसकी ऑडिट रिपोर्ट्स होनी चाहिए। आपका नॉक और टेल जो आपके इंजन्स में डलता है, नॉकिंग सब्सटेंसेस सॉल्यूशन, टेल टीईएल टेल, इस टाइप की चीजें जो है वो रेगुलरली आपका हो। आपका पोल्यूशन चेक होता रहे, कार्स का और बाइक्स का, आपका रेगुलर रेगुलर पोल्यूशन चेक होता रहे, आप रेगुलर गाड़ी की सर्विसिंग कराएं। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो ग्लोबली हर एक इंडिविजुअल कर सकता है, रेदर देन कि आप हर चीज में गवर्नमेंट की तरफ देखें कि व्हाट दे कैन डू, वी कैन डू दैट टू। सो काफी एयर पोल्यूशन से रिलेटेड रूल्स पॉलिसीज जो है समिट्स होती रहती हैं, which can help, or we can be the good contributors, we can be the contributors not to contribute for all these environmental issues. So this was the basic I just wanted to share with our new generations about the main environmental issues which the globe, the whole world is facing nowadays, और ये आगे जाके जो है इंक्रीज होने वाला है रेदर देन डिक्रीजिंग, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आया है कि हम वो एयरक्राफ्ट में बैठ के जाएं और ओजोन लेयर को जाके सुई धागे से सिल के आ जाएं। इट इज नॉट पॉसिबल। तो जो हो रहा है ना वो डिग्रेड हो रहा है, अब हम उसे उस जगह पे सिर्फ स्टॉप कर सकते हैं। वी कैन हील इट अप, वी कैन हील इट फर्दर, हम सिर्फ इसे स्टॉप कर सकते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ एनीबडी ऑफ द स्टूडेंट्स they try to answer them. And other students try to answer in two rather than only one or two students. Okay, what is the full CNG? What is the full form of CNG? Hello. Buddy, what is the full form of CNG? Compressed natural gas. All right, fine. Uh, uh, okay, any two ill effects of any two ill effects of acid rain, Napoli or like globally? Anyone? Ma'am, Two effects of acid rain? Hello. Hello, yes. Any two ill effects of acid rain on human sir, or animal? Anybody? Anybody? Maybe it's quite difficult for all of you to answer any technical issues. So, dear students, these were two basic issues: ozone depletion and your brain, which I really want you guys to take it a bit, read few articles and try to get अपने घर में अपने छोटे भाई explain what we can minimize it to an extent. Not possible to completely negotiate your urbanization, industrialization, your all those stuffs, globalization आप इसे नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस हम हर कंट्री वर्ल्ड की इस दौड़ में शामिल है, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्रीज की दौड़ में। तो वी कैन नॉट स्टॉप इट, बट
हमारी तरफ से किए गए स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स, जैसे कि लॉकडाउन ने हमें सिखाया है कि किस हिसाब से जितना हमने बर्बादी की है हम कुछ एक्सटेंट तक हील भी कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को. सो that's what I just wanted to conclude, and the language was because I wanted all the students to get it properly. So thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for delivering such an impactful and remarkable lecture. I hope that students will imbibe the information you delivered here. Thank you very much, ma'am. Thank you. बहुत अच्छा और बहुत वेल आर्टिकुलेटेड और बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर मैम. बल्कि मुझे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन वॉल्केनोज के बारे में ये आज ही मुझे पता चला कि वॉल्केनोज एरप्शन के बाद आपने क्या बताया था कि एसिड रेन में एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है लेकिन ग्लोबल वार्मिंग कम होती है. क्योंकि सर एरोसोल and aerosols has the I mean they have a tendency to repel whatever is coming from the sun, so they just मतलब वो उन्हें properly आने नहीं देते हैं. They just absorb it and if you can आप अगर कुछ सजेस्ट कर सकें इसके बारे में कोई स्टडी मटेरियल तो प्लीज शेयर कीजिएगा. Sir, actually, I mostly go with research papers like Yes, sir. global warming, climate Yes. पे. I mostly go with online research papers. That's Okay, it. that is fine. तो आदर्श सर हैं क्या इस समय हमारे साथ? I think must be here. Yes, हमने- Adarsh sir. जी मैं हूँ. जी सर, मैं कह रहा था सब टीचर्स अगर अपना वीडियो ऑन कर लेते तो एक सेल्फी एक फोटोग्राफ इवेंट की हो जाती है हमारी. अरे बिल्कुल, मैं तो करे बैठा हूँ. जी सर. जी जी. नूतन श्रीवास्तव मैम भी हमारे साथ थी. ठीक सर, ये एक सेल्फी तो मैं ले ही लेता हूँ. हमारा Thank you. फोटो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर. थैंक यू सर. ठीक ठीक. ओके. तो शैल वी सम अप नाउ? यस सर, यस सर. ओके. थैंक यू. थैंक यू मैम. Thank you, everybody.